Good morning, Hare Krishna, Jai Shri Ram. Tuesday, 24 March, right now starting what I. The panic of 9:40 a.m. Close up of digital clock ticking, tick tick loudly. The screen is shaky. We see a kitchen in fast forward motion, tea boiling, a pan being covered with a plate. I check. Heavy breathing, the sharp clink of a teacup, and the sound of internal heartbeat. Thak, 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 thak. The morning does not start with the sun, it starts with anxiety. 9:40 a.m. The air feels very heavy. Mamu is ready, he is informed. Shirt is check biscuit color, but his face is a storm. My head is throbbing, a dull pulse behind my eyes. I am moving, but my brain is 5 steps ahead, tripping over itself. The bathroom sanctuary or a prison. The screen goes dark. A single light from the hallway spills into dark bathroom. The protagonist is in shirt from yesterday and low, same lower. Water splashing, muffled voices from the outside in his brain. I get 5 minutes, 5 minutes to wash away the night in the dark because the light board is broken. I am wearing yesterday's shirt, same. My mamu noticed. He said to me. I went to scream that I have not even had a yeti, but the words stay in my throat. I see fitness creators in my head at that time when I serving tea to my mamu. Mitali, Tanya, the perfect life versus my 5 minute darker shore. The street versus soul, a split screen. On the left side, in my street, neighbor in a bright Punjabi suit, laughter and party music, a marriage tent, a bull standing outside the gate in the morning. The right side, the protagonist form, face I am. Pale, eyes stuck, looking out from the terrace, all was everybody going in a marriage. High energy, bhangra music, clashing with a low, melancholic cello note. Outside the street is celebration. Beautiful suits, makeup smiles. They don't see the tragedy in my house. They don't see the domestic violence in the house next door. But I see. But the same people go in that particular marriage. They just dance. They just all enjoy. I look at them and realize my presence or absence is equal to them. I am a ghost in my own lane. The protagonist is bed with a cotton in her ears. Laptop screen glows with accounting and income tax lectures. Suddenly, it shifts to dramatic TV show scene a romantic lead who feels like a future someone at night. She was watching. The sound of scrolling. Swipe, 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 swipe. By night, I become a nocturnal student. While Mamu scrolls through his phone, I am building our own world. My sister calls, but our time don't match. She said I was going to the sleep. No one time matches mine. I fall asleep into the nightmare, accident, animals lost. I watch only to wake up to the milkman ballet at that time at 8:30 a.m. The protagonist sitting at the table, breakfast in front of her at 10 a.m. The camera blurs. High pitched ringing sound that slowly fades in the voice of teacher giving an interview. 10:04 a.m. I'm eating, but I feel like I'm vomiting right now. Just 10 minutes before. So hand is so much pain. I hear a student on screen saying that they love studying at night in an interview, in a Samriddhi ma'am interview. I'm not alone in the dark, but the date is too loud. Everything feels like a graphic I'm trying to edit, but the background won't stay still yet. The camera is extremely close up on the protagonist's face. Background is blur and spins slowly. We see the Mamu in the background, out of focus, eating breakfast. Movements are so much heavy, like a skipping DVD. 10:07 a.m. World is too loud, but the loudest noise inside me in my own head. There is a ringing in my ears that don't stop. Sharp silver needle of sound. My throat, it was the time of. My throat feel like desert. I try to swallow.
but it's tight, restricted. Anxiety is not just a happen thought, it's a physical invasion. Outside this storm in my hand, life is normal. Spoon hit plate, breakfast is being finished, they are fueled for the day. While I am running on empty, trying to catch my breath in room full of oxygen, I am radio tuned to frequency no one else can hear. सुबह के 10:07 मेरा गला अंदर से सूख कर कांटा हो गया, दर्द हुआ जैसे कोई रेगिस्तान की प्यास हो। ये सब एंग्जाइटी के ही साइन होते हैं। कानों में एक अजीब सा शोर है, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, एक आंखों का दर्द। इसे एंग्जाइटी कहते हैं शायद। मुझे ये किसी हमले जैसा लग रहा है। बाहर मामा नाश्ता कर रहे हैं, उनके लिए एक आम मंगलवार है, पर मेरे लिए मेरे सर के अंदर एक जंग चल रही है। मुझे बोलना है, गला साथ नहीं दे रहा, मेरा दम घुट रहा है और उन्हें लग रहा है कि मैं बस शांत हूँ। काश कोई देख पाता कि इस सन्नाटे के पीछे कितना शोर है। रात के रोमांटिक सपने, पड़ोसियों की शादियाँ, यूजीसी नेट की आंकड़े और वो ब्लैक सांड जो गेट पर खड़ा था आज की सुबह, ये सब चीज़ें एक साथ स्क्रीन पर नाच रही हैं। मैंने सब कुछ दिमाग में भर लिया, मैथ्स के फॉर्मूले, पड़ोसियों के झगड़े और वो सपने जो मुझे सोने नहीं देते। अब ये सब बाहर निकालना चाहती हूँ, मेरा दिमाग हल्का होना चाहता है, या मेरा शरीर भारी हो रहा है। ये एक मध्यवर्गीय घर, हाँ, बाहर उत्सव और अंदर मानसिक उथल पुथल चल रही है। सुबह की 9:40 नींद अधूरी है, पर डर बहुत ज़्यादा। सेंटर वाले मामू तैयार हैं, बिस्किट कलर की चेक शर्ट डालकर, लेकिन चेहरे पर इतना गुस्सा कि वही पुराना साया। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पर किचन की कमान मेरे हाथ में है। चाय गरम, सब्जी गरम की, पर इतना कि गरम सब्जी के पैन पर दोबारा प्लेट ढंक दी। ऐसे मैंने चेक किया, भूल गई कि वो पहले से ढकी थी। मामू लेट हो रहे हैं, मेरा दिमाग तेज भाग रही है ट्रेन जैसा। बाथरूम की लाइट ख़राब है, अंधेरे में नहाते हुए मुझे याद आता है कि मैंने कल वाला लोअर शर्ट वही पहन ली है। 5 मिनट मिले थे, उसमें क्या बदलती। मामू ने टोका, गुस्सा आया, पर मैं चुप रही। उसी वक्त दिमाग में मिताली और ताना की फिटनेस वाली वीडियो चल रहे थे। काश ज़िंदगी उतनी ही सॉर्टेड होती। बाहर छोटे मामू अपनी सफ़ेद बनियान और काले शॉर्ट्स में मुझे जल्दी करने का इशारा कर रहे थे। गली में खुशियाँ हैं, पड़ोसी पंजाबी सूट में सजे धजे शादी के लिए निकल रहे हैं। मेरी क्लासमेट भी वहाँ है, सब खुश हैं, मुझे रोना आ रहा है। हमारे घर में इतनी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, अब ब्लॉग में बताते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। उनके लिए मेरा होना या ना होना बराबर है। उनका अपना सर्कल है, अपनी दुनिया, और मैं यहाँ इस घर के क्लटर में फंसी हूँ। ये कहना बहुत आसान है। अब 10:07 हो रहे हैं, मेरा गला अंदर से सूख कर कांटा हो गया है। मेरे एक अजीब सी, शायद ही मेरी घबराहट है। सामने मामू नाश्ता कर रहे, चम्मच की आवाज़ हथौड़े जैसी लग रही है। रात को यूजीसी नेट की पढ़ाई, वो अजीब से सपने, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कटा हुआ पैर। सुबह उठते ही भाग दौड़, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म शूट कर रही हूँ, पर कट बोलने वाला कोई भी नहीं है। रात को नींद नहीं आती, ना जाने कब सो जाती हूँ। सुबह उठते गेट पर वो काला सांड खड़ा दिखता है, मुझे लगता है कि जैसे नानी माँ कोई संकेत दे रही हैं। पड़ोसियों ने उसे भगा दिया, पर मेरे दिमाग का शोर कौन भगाएगा। एडिटिंग सीखना चाहती हूँ, ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, पर अभी अभी बस ये उल्टी जैसा मन कर रहा है और सिर दर्द हो रहा है। कभी कभी सबसे बड़ा शोर हमारे घर के बाहर नहीं, हमारे सिर के अंदर होता है। हम दूसरों की शादियों और खुशियों को देखकर अपनी तुलना करते हैं, पर असलियत में हर घर के पीछे एक ट्रेजेडी छपी होती है। लोग कहते हैं सुबह का सूरज नई उम्मीद लाता है, पर मेरे लिए बस एक ड्यूटी का अलार्म है। अजीब है ना। बाहर पड़ोसियों के घर शनाइयाँ बज रही हैं और लोग सजे धजे हैं, और उनके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत है, और मेरे घर में एक चाय के गर्म ना होने पर माथे की सिलवटें और गहरी हो जाएगी। मेरा गला सूख रहा है, कानों में एक अजीब सी आवाज़, जिसे एंग्जाइटी कहते हैं, पर इसे मैं किसी को समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर बोलूँगी तो वो बहस कहलाएगी, अगर चुप रहेगी तो वो काम चोरी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले हैं जो इस घुटन में जी रहे हैं, पर शायद उस चमकती हुई शादी वाली भीड़ में कोई भी होगा जिसका गला मेरी तरह सूख रहा होगा। बस फ़र्क इतना है कि वो एक्टिंग बेहतर कर लेते हैं, मैं स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेती हूँ। सुबह के 9:40 में सूरज की रोशनी से ज़्यादा डर की दस्तक तेज़ तेज रही है। बाहर मामू तैयार खड़े हैं, और यहाँ किचन में मेरा दिमाग किसी पुरानी मशीन की तरह शोर कर रहा है। कभी चाय गरम, कभी सब्जी, और उस हड़बड़ाहट में एक पैन पर 2 बार प्लेट ढक देना। हम इसे भूलना कहते हैं, पर असल में ओवरलोड है जो हमारा दिमाग अब और झेल नहीं सकता। गली में खुशियाँ हैं, पड़ोसी सजे धजे हैं, शादियों का जश्न है,
और यहाँ मेरे घर की ट्रेजेडी। उनके लिए बस एक और गॉसिप है। अजीब है ना, हम एक ही गली में रहते हैं पर हमारी दुनिया के बीच मीलों का फासला है। मेरा होना ना होना उनके लिए बराबर है, क्योंकि सबकी अपनी एक एक्टिंग है, अपना एक सर्कल है। अभी 10 बजकर 7 मिनट हुआ, मेरा गला अंदर से फिर सूख रहा है। कानों में एक ऐसी गूंज है जिसमें कोई ना कोई नहीं सुन सकता। लोग इसे नखरे कह सकते हैं, पर वो शोर है जो जिसे नेट की पढ़ाई, रातों के डरावने सपने और घर की उम्मीदों के बीच में पिसा हुआ है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको चुप रहकर काम करना सिखाया जाता है, पर उसे चुप्पी की कीमत ये सर दर्द और उल्टी जैसा मन चुकाता है। इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग वाला मॉरल नहीं है। सच तो ये कि हम सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट के हीरो हैं। कभी कभी हमारा विलन कोई और नहीं, हमारा अपना ही मन होता है। मैं हूँ प्रियंका, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, और इन हज़ारों आवाज़ों में से एक चीज़ चिल्लाना चाहती है, पर मेरी चाय ठंडी हो जाएगी इस सोच कर चुप हो जाती हूँ। थैंक यू।